फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers. You are watching Cricket Next, India versus England 4 test in Ranchi, and the latest update is that England has won the toss and they have decided to bat first. Now this is something that we have been discussing for a long time now. No Jasprit Bumrah, you have rested your spearhead, and if England wins the toss and they choose to bat first, will India be able to control them, and will India be able to keep them under check? And that is something again we'll have to wait and see. Today India will come out to bowl. Akashdeep was handed his maiden debut cap. Big day for the youngster, for Akashdeep, because representing your nation for the first time in red ball cricket, or rather in international cricket, it's always a big thing. And the fact that he's a 313th player for the Indian team to represent the team in Test cricket. We'll talk more about this test, about this toss, about the playing 11s. I have with me Taus Rizvi, who will join and talk about this match. Taus bhai, a very good morning to you. Uh, England wins the toss and chooses to bat first. What are your thoughts? oh, I mean, we weren't expecting this because conditions तो भाई एकदम cloudy. Apparently, this is what we have been getting reports from. Kind of Yep. not a good news right now, but good news for Akashdeep that he's made his debut. So the best part for Akashdeep is here. He's going to get cloudy conditions, good fresh wicket. He can just go out there, attack, get those wickets. Because if England stays, the Ben Duckett's of Zach Crowley, it's dangerous there. Because this is the only time, the first innings and the first Yeah. day, the wicket remains the best. उसके बाद collapses आप देखो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था. और normally this is what happens in India. But then Yeah. आकाशदीप की तो बात हर बार की तरह सही हुई. मजा आ गया. एक नया डेब्यू, नया लड़के को देखने. No, but how do you see Akashdeep as a bowler? Do you think in conditions like this he will bring in more purchase than Mukesh Kumar? क्योंकि आप बुमराह नहीं है तो आप ऑप्शंस देखते हैं. आपके पास आकाशदीप है जो डेब्यू कर रहे हैं, आपके पास मुकेश कुमार है जो खेल चुके हैं एक या दो या कुछ मैचेस साउथ अफ्रीका में भी खेले थे वो. तो डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन टू बैक अ यंगस्टर, क्योंकि मुकेश कुमार ने आपको इंडियन कंडीशंस में इतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया है? और वुड यू हैव गॉन विद द slightly more experience? I won't say Mukesh Kumar is an experienced guy, so to say, but slightly more experienced than Akashdeep. नहीं, क्रिकेटिंग वाइज मुकेश कुमार को ज्यादा एक्सपीरियंस है. ही इज 32, दिस गाय इज 27. 3 साल का एज फर्क है, बट देन मुकेश हैज प्लेड मोर डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट, तो एक्सपीरियंस तो है ही मुकेश को. बट फ्रॉम डे वन आई बीन सेइंग आकाशदीप, क्योंकि आकाशदीप ब्रिंग्स दैट एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आता ना. मुकेश कुमार को बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो गए होंगे, उनको पता होगा वी कैन. और ये बेन डकेट अगर राइटी बन जाए और जैक क्रॉली लेफ्टी बन जाए तो भी वो मुकेश कुमार को आराम से खेल सकते हैं. The problem is Mukesh Kumar lacks that pace. He doesn't have that extra bounce. He variety नहीं है बंदे के पास. तो और ये मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ. मतलब जब आकाशदीप का इंक्लूजन हुआ था और जसप्रीत बुमराह को जब अनाउंस किया था यार बाहर जाएगा और he won't be playing, which is a very big decision and a shocking one, because जब आप सीरीज 2-1 अप होते हो तो आप 3-1 अप करने की सोचते हो, ना कि 2 ऑल करने की. तो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करना मतलब 2 ऑल करने का फैक्टर आ जाता है इससे ज्यादा, क्योंकि आप आकाशदीप अनफेयर, इट वुड बी अनफेयर टू प्रोड्यूस समथिंग मैजिकल. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम आकाशदीप, जस्ट दैट ही इज गॉट एक्स्ट्रा बिट ऑफ पेस, सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगा. बाकी और मैं कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आकाशदीप से. बिल्कुल. एंड सी इन दिस केस ताउस, मोहम्मद सिराज का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अब आप सीनियर मोस्ट बॉलर बन चुके हैं, अब आप सीनियर मोस्ट पेस सीमर बन चुके हैं. अश्विन है एज अ बॉलर, तो मोहम्मद सिराज जो हमें पता है ही गोज वेवर्ड विद हिज लाइन एंड लेंथ, वो एक दो बॉल्स पैड्स पे दे देते हैं. यहाँ पर मोहम्मद सिराज का कितना जरूरी है स्टेप अप करना इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह? यार मुझे लगता नहीं है कि इनके लिए कोई नया रोल है. ही इज बीन देयर यार. वेस्ट इंडीज में भी शायद ही अकेले ही लेड फ्रॉम द फ्रंट. और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट लोगों को प्रूव करने के लिए, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस, इनफैक्ट लास्ट मैच ही गॉट अ 4 विकेट हॉल. बट देन जब बुमराह नहीं होते तो आप एक एक्स्ट्रा बर्डन तो रहता है, ये प्रेशर रहता है ये फास्ट बॉलर पे.
और खास करके जब सिराज पे somebody who's not doing well और सवाल उठ रहे हैं, लाइन एंड लेंथ वेवर्ड जा रहे हैं और विकेट टेकिंग नई एबिलिटी नए बॉल से नहीं हो पा रही है, तो प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा। बट देन यार, क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन थ्राइव अंडर प्रेशर, और अगर आप प्रेशर के अंडर और ऐसे अपॉर्चुनिटी के अंदर परफॉर्म करते, यू बिकम बिगर स्टार देन व्हाट यू आर राइट नाउ। तो इससे बेटर मौका मुझे लगता नहीं है सिराज को मिलेगा कि भाई आप जसप्रीत बुमराह नहीं, आप अटैक लीड कर रहे हो, आप यहाँ पर इंग्लैंड के सामने खेल रहे हो, फास्ट बॉल के सामने खेल रहे हो, बैटिंग फर्स्ट किया इंग्लैंड ने, पाटा विकेट है फर्स्ट 2 डेज। अगर आपने यहाँ पर कमाल किया, 5-6 विकेट निकाला, एक कोलैप्स ट्रिगर किया इंग्लैंड के सामने, तो आप जानते हो क्या बन जाओगे, इंडिया में सुपरस्टार बना देंगे फिर से आपको। बिल्कुल एंड आई गिव यू एन अपडेट टू ऑल आवर व्यूअर्स. इस सीरीज में वी हैव बीन सीइंग players going home because of personal reasons, and we have one more addition to that. England's Rehan Ahmed has gone back to England due to personal reasons, and he won't be returning to India for this series. Now he is out of this series, and England won't be giving any replacement for Rehan Ahmed. इस series के लिए कोई replacement नहीं होगा, and he has gone back due to personal reasons. We wish him all the best. We hope everything's good and fine back home for Rehan Ahmed, the youngster. He has been doing well in this series. He was not in this match. He was already out of the 11. Maybe this was the reason. We never know. But ताउस इस सीरीज में हम देख रहे हैं काफी प्लेयर्स का आना जाना लगा हुआ है. काफी प्लेयर्स पर्सनल रीजन से वी सॉ शुरू में तो वी सॉ विराट कोहली अगेन ही इज नॉट अवेलेबल टिल नाउ. अश्विन हैज गॉन बैक होम. उन तरफ से हैरी ब्रुक ने भी सीरीज शुरू होने से पहले कह दिया था ही वोंट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस. एंड नाउ रेहान अहमद. कैसे देखते हैं आप इतने प्लेयर्स? कुछ अश्विन तो थैंकफुली जाके बीच में वापस भी आ गए अगले ही दिन. बट रेहान अहमद, डू यू थिंक Rehan Ahmed would have played a good role here and in Dharamshala? Yeah, I'm not impressed with Rehan यार. He's pretty ordinary bowler. He was hyped up basically. और hyped up क्यों? क्योंकि आपके पास spinners ही नहीं है. England doesn't have those spinners, the kind of spinners that we produce. आप देखेंगे, एक नहीं गया तो कुलदीप आ गया, कुलदीप नहीं है तो फिर अक्षर है, अक्षर नहीं है तो वॉशिंगटन है. And so England for me, like Rehan Ahmed is a मतलब talking point, which means कितना ordinary उनके पास बैंक है या पूल है स्पिनर्स को लेकर. बशीर भी मुझे लगता नहीं इतना कुछ इफेक्टिव हुआ है, जस्ट दैट ही इज गॉट दैट हाइट. अदरवाइज आई फाउंड हिम टू बी वेरी ओके. आई फाउंड जो रूट टू बी मोर इफेक्टिव. बट देन साहिल आ गया है, तो साहिल से मुझे लगता है बात करना चाहिए, उनको Sahil. जाना होगा अगर Sahil तो वो Malhotra बात तो करते has रहेंगे. joined us मॉर्निंग. live from Ranchi. Sahil, a very good morning to you. We can see the गुड amazing मॉर्निंग भाई stadium in लोग. the background. Sahil, basic updates I'll get to you. पहले weather update, second pitch कैसी लग रही है? मैं पहले वेदर आपको दिखाई देता हूँ यार, अपडेट क्या दूँ. प्लेजेंट Clear. है, बहुत मध्यम मध्यम हवा चल रही है. सनी बट इट्स नॉट हार्श सनी, so the weather is good. The pitch looks dry, but it will not be a rank turner from ball one. I've been saying this since yesterday. The kind of heat which is there, it's not that hot for the pitch to break up right from day one, but it will turn. It will be a slow turner. It's dry, but again, जो कल हम fear कर रहे थे, इंग्लैंड टॉस जीत गया है, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है. So it's 2-all when it comes to tosses. And last time England won a toss, it was in Hyderabad. We all know what happened after that toss. So it's going to be a very interesting session for India. They have like two fast bowlers who could go away for runs. But let's back Akashdeep. Yaar, what a beautiful story. 4 debutants already in the series. So let's back the young boys to deliver the goods again. Absolutely. And Sahil, I just saw you sent an update about Rehan Ahmed. If you will Yeah. like to throw some light on it. Yeah, so we just got this release from ECB's media team, and we were just told that he has gone home due to personal reasons. The details aren't known yet, but he will not be joining the squad. Whether it was a decision taken because they were not likely to play him in Dharamshala, I don't really know. I hope everything is fine on his family front, if at all that is the case. So we'll get more details as soon as I get back to the press box. But right now, I just got the detail that he'll be going back home and will not join the side for the remainder of the tour. Absolutely. And Sahil, as you said that England will be batting first now. What would be India's challenging on these conditions? Do you think a pacer like Akashdeep along with Mohammad Siraj, और सिराज का रोल कितना important हो जाता है in the absence of Jasprit Bumrah to step up and take wickets? Siraj becomes your all-important bowler now, Kana. Matlab, first session has to be controlled by Mohammad Siraj.
He cannot control. He cannot afford a very erratic approach. टप्पा पकड़ के बॉल डालते रहो दोनों एंड से यार, बिकॉज दूसरे एंड पे डेब्यूटेंट है, उसकी नर्व्स होंगी, एक आध लूज बॉल आ सकता है. बट दिस इज वेयर सिराज हैज टू स्टेप अप, guide the young bowler through, and then let spinners do the magic later in the day. But early on, first 10 overs, Akashdeep and Siraj, even if you don't pick a wicket, make sure you tie them up. Don't give them boundary balls. 10 over इनको frustrate करो. Yeah, yeah. Sahil, can we see Ben Stokes bowling in this match? You have been there in the training session, और ये सवाल काफी fans के मन में आ रहा है. Yeah. He has been very 50-50. He hasn't been very sure about it, but he has been training hard. मतलब परसों अगर मैं बात करूं तो उन्होंने full tilt bowling किया था. But कल जब when we asked him at the press conference, he was like, I may not. So he's very 50-50 when it comes to bowling. And if it's there, if there's no need, I don't think he should like go for bowling right now. मतलब ठीक है, अभी there are bowlers who can do the job for you. But he looked good. So it depends how his body kind of reacted. He has been very tight-lipped about it, about how his body reacted after a long session while he arrived in Ranchi. And this was the first time जब उन्होंने एक batsman को ball डाला था. उससे पहले वो single wicket drills कर रहे थे. So it's different when you bowl to a batter. So he wasn't sure. He did not commit to anything. So we'll only find out by the time India get out to bat. Hopefully today, but looks like tomorrow. या साहिल, बेन स्टोक्स ने कल जो पिच के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं पिच पे. अब इज दिस ट्रू? बड़े क्रैक्स हैं पिच पर? कैसी है पिच उस मामले में कि इट विल ब्रेक सून? इट हैज क्रैक्स, बट वही मतलब मैं 3 दिन से मैं और ताउस भाई और जेमी भाई हम यही बात कर रहे हैं. क्रैक है, बट वो टूटेगा कि नहीं वो किसी को नहीं पता. टर्न है, पर वो कब होगा ये किसी को नहीं पता. टर्न है, पर वो कितना होगा ये भी किसी को नहीं पता. So that all depends what happens to the pitch during the course of the match. जब प्लेयर रन करते हैं पिच पे, when the bowlers kind of hit those foot marks on the follow through, कितना ब्रेक करता है ऊपर का सरफेस, वो सब आपको as the game progresses तब बेटर आइडिया लगता है. क्रैक्स है, टर्न है, स्लो हो सकता है, लो रह सकता है, बट कब होगा that is anybody's guess. Yeah. Sahil, we have a comment here. Ujjwal More is asking, will there be early help on the pitch for the bowlers? Should be यार, there should be. It's not that hot right now. हल्का हल्का मतलब मैं कहूँ मीठा मौसम जिसको हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, वैसा मौसम है. तो शुरू के 7-8 ओवर when the seam is hard, when the ball is new, it should help the faster bowlers, especially Akashdeep, because वो एक्स्ट्रा पेस है और एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगा. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जब आउट ऑफ सिलेबस आते हैं ना, थिंकिंग टाइम बढ़ जाता है. सो आई होप वैसा ही रहे. Will you be tempted to bring in spinners early, पहले कुछ overs में Ashwin from one end to bring a change? Why not? Why not probably to Ben Duckett? That wouldn't be a bad option, because you wouldn't allow someone like a Ben Duckett to get his eye in early on. So why not Ravichandran Ashwin after giving a couple of overs each to both the seamers? और अगर आपको लग रहा है help नहीं है, get in Ashwin versus Ben Duckett यार. बहुत पक सुन लिया Ben Duckett का. शांत कराओ अश्विन को लाके अब. Absolutely, I guess, and यशस्वी जायसवाल सिली पॉइंट पे तो मजा ही आ जाएगा. जायसवाल भी अपनी 2 सेंट्स देंगे. साहिल, यशस्वी छोड़ो, सरफू भाई कान खा जाएगा वो अगर बोलने पे आया. Absolutely. साहिल, what's the turnout in Ranchi? कितने लोग आए हैं? क्या वाइब है स्टेडियम के बाद? Not good. मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ. 1 second ना. One second. Yeah. So this is the south gate, हाँ. Okay. और ये हालत देख लो आप. Oh. खाली है. There's nothing. There's no one. मतलब there are no spectators. There were plenty of English spectators when I was walking in, and apart from that, there's nothing out there. No, मेरे को तो कोई buzz नहीं दिखा. यहाँ किसी को जर्सी भी नहीं खरीदना है. राजकोट में I think we saw some people better than this, I guess. Maybe day 2, day 3 में थोड़ा crowd आएगा, but अभी तो मुझे कोई crowd नहीं दिखा. Yeah, I mean, next 2 days are the weekend, so hopefully we will see. How big a role? Sahil, you have covered a lot of test matches. How big a role does crowd play in test matches? T20 ODI में हमने काफी बात की है. Test में कितना बड़ा रोल होता है? It does play a big role, यार. मतलब last time when India were playing in Rajkot, when they had those school kids on day 2 and day 3, they were so vocal, and it was creating such a good buzz when Jadeja was batting, Rohit was batting. मतलब वो इतना अच्छा buzz create हो गया था क्योंकि इन लोग ने वो पूरा मतलब stands भरने की कोशिश की.
इन्होंने ऑर्फनेजेस से बच्चे बुलाए राजकोट में, स्कूल क्राउड बुलाया, तो मतलब उस लिहाज से अगर आप देखो नॉइजी तो होता है क्राउड, और टेस्ट क्रिकेट में जब एक पीरियड ऑफ लल आ जाता है, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता, crowd can actually help make things happen. Yeah. And Sahil, last few questions. Rohit Sharma's captaincy. Have you seen his captaincy improve in this series? पहले दो मैचेस के रिगार्डिंग राजकोट में we saw के एक दिन वो पैनिक कर गए थे, but then in the absence of Ashwin, he really brought the team together and the bowlers also came together. What's your take on Rohit Sharma's captaincy in this series so far? It has been a good reactive approach, but today is the day where he can show how good a proactive captain he can be. Because abhi the team start at none for none. Abhi kuch matter nahi karta. England are batting first. You don't know what they are going to do. This is where you make things happen and not wait for them to do something and then you probably react. So आज आपको एक बहुत अच्छा insight मिल सकता है about Rohit the captain, about how much he's actually come along since that Hyderabad test. Yeah, and talking about Joe Root, Sahil, do you think he should stick with the way he's playing, or do you think Joe Root should come into his own and Joe just Root should play the way play Joe Root has been the playing for way years? Root should play the way he has scored majority of his test runs. तो sweep, reverse sweep, lappa, pulla, आड़ा, टेढ़ा, वो नहीं जमता, वो नहीं जमता. Would you like to see Virat Kohli doing these things when he returns to cricket? No, right? There was long time back during an interview, Virat Kohli was asked, आप sweep नहीं करते? तो उसने बोला मैं sweep वाले रन conventional shot से बना लेता हूँ. तो क्यों रिस्क लेना है sweep मार के? बहुत प्लेयर्स का ये अप्रोच रहता है कि स्वीप क्यों करना है, रिस्क क्यों डालना है एलबीडब्ल्यू का. तो ये शॉट्स का जरूरत नहीं है यार. एंड जो रूट इज अ ब्लडी गुड बैटर, ही इज अ गुड बैटर, ही डजंट नीड दीस शॉट्स. हाँ ताउस भाई. या ताउस भाई. साहिल ब्रो, सीन क्या है? मतलब धोनी रिटायरमेंट के बाद रांची के में टेस्ट मैच हो रहा है. मतलब रिटायरमेंट तो पहले हो गया, मगर अभी धोनी का माहौल है कि नहीं? अभी भी क्या हो रहा है धोनी के बारे में? ठंडा. धोनी को कोई याद नहीं रखा. अब वो माहौल चेन्नई चला गया था उस भाई. अब वो माहौल चेन्नई चला गया. यहाँ वो वाली हवा है ही नहीं अब. साहिल भाई, इस आपके इस जो आपने कहा कि बिल्कुल ठंडा माहौल है, टर्नआउट नहीं है, डू यू बिलीव इंडिया में भी 5 टेस्ट सेंटर्स होने चाहिए जहां पे कि टेस्ट का क्राउड आएगा? Absolutely. Test cricket should remain to Chennai, Wankhede, Calcutta, probably Delhi. Centers like these, centers which have history, centers where you know crowd will turn up. ऐसे मतलब randomly rotation में, these are marquee tests, boss. You're talking about India England 5 test series, and you're traveling like length and breadth of the country, going to venues which are like not accessible to the general public as good as a Wankhede are, a Chepauk are. All these things are factored in, right? तो जिन वेन्यूज का हिस्ट्री है, कुछ रेलेवेंस है पुराना इंडियन क्रिकेट के लिहाज से, वहां खिलाओ ना क्रिकेट यार. ऐसे रैंडमली कहीं भी टेस्ट क्रिकेट कराना, व्हाट्स दैट अप्रोच? आई डोंट रियली नो. एंड आई नो इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज लॉट ऑफ बीसीसीआई पॉलिटिक्स इज एट प्ले व्हेन इट कम्स टू गिविंग मैचेस एंड रोटेशन ऑफ मैचेस, बट इट मस्ट स्टॉप. वी नीड टू आइडेंटिफाई 5 वेन्यूज जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया डू, इंग्लैंड डू, और उन्हीं वेन्यूज पे क्रिकेट खिलाओ ना, ताकि वहां एक माहौल बने, कल्चर बने टेस्ट क्रिकेट का. Absolutely, this is a very nice debate to have for some other day. Sahil, before I let you go, I know you have to go inside. One last question: what's your prediction for today? I think England should dominate. If they don't dominate today, the series is gone. They'll lose 4-1. Aaj is the day where England can actually make a very strong comeback with the bat. There's no baggage. They're batting first. Best conditions to bat in the test will be today. Pitch hard रहेगा, conditions अच्छा है, ball hard new, will travel, outfield will be quick. This is the time to make it big. And no Jasprit Bumrah, the biggest factor that India is there with correct. Bumrah. Yeah, England should take advantage of this. Thank you so much, Sahil, for connecting with us. Thank you. And we'll connect with you today, later in the day, for further updates. Thank you and enjoy the match. Thank you guys. Thank you. Yeah. ताउस भाई, ये जो साहिल भाई ने बात की अभी के आप टॉस जीत गए हो, कंडीशंस बहुत अच्छी हैं बैटिंग के लिए, ब्रांड न्यू बॉल है, आउटफील्ड बहुत तेज है, और उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर डाल दो, देयर इज नो जसप्रीत बुमराह. अगर आप इंग्लैंड के कैंप पे हो तो आप क्या सोच रहे हो इस टाइम? मैं तो थोड़ा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज को भी मैं अगर एकदम ही लाइटली ले लिया तो आई मीन आफ्टर ऑल ही इज बीन अ मैच विनर फॉर इंडिया. सो आई वोंट बी लाइक आई विल बी गोइंग आउट ऑल आउट. वैसे मेंटालिटी यही है कि बेसबॉल क्रिकेट खेलना है उनको, तो बेन डकेट एक ही तरीके से आता है खेलना उनको, तो अगर उनको एक ही तरीके से आता है खेलना है तो आप वैसे ही खिलाओ.
और वैसे ही विकेट मिल गई आपको। और जैक क्रॉली तो आप जानते ही हैं। तो दिस इज एन एडवांटेज फॉर राइट नाउ मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप की यार दे विल बी ओवर कॉन्फिडेंट नाउ। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होते समझ में आता है, बट दे विल बी ओवर कॉन्फिडेंट, दे विल बी थिंकिंग अरे बुमराह नहीं है तो नाउ वी कैन गो ऑल आउट, अटैक करो। बुमराह ये सिराज के पास इशू कुछ नहीं है, इशू उनका है कि यार वो एंगल लेके बहुत डालते एंगल, मगर अगर आप क्रीज को थोड़ा यूज करेंगे बराबर, if you fool them by bowling a bit outside, left थोड़ा और होके वाइड थोड़ा होके डालेंगे, तो you have chances of getting in also taking it out. तो सिराज should be that smart enough यार, तो I think he should use this advantage of England being overconfident. Best opportunity, इसके अलावा क्या मिलेगा यार? Look at the एब्सोल्युटली। crowd. I mean, English वही ताउस fans will भाई, be ये crazy देख about के मेरा Test सवाल cricket है, यार। इंग्लैंड फैंस इज मोर देन इंडियन फैंस इस स्टेडियम के बाहर। साहिल भाई ने भी कहा जी बहुत लेस ठंडा पड़ा है, नो टर्नआउट, और मेरे को तो लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द फैंस वी कैन सी आर द इंग्लिश फैंस। इतनी बड़ी लाइन है जो, सो डू यू बिलीव इन द थ्योरी दैट देयर शुड बी 5 टेस्ट सेंटर्स इन इंडिया टू? नहीं, दूसरा आप ये भी देखो ना यार, स्मॉल सेंटर्स में आपको फैंस तो हैं, बट एक तो ग्राउंड बाहर है, दूसरा आपके पास पैसा भी चाहिए ना भाई फैंस के लिए। क्रेजी फैंस दे आर रेडी टू स्पेंड मनी, और दूसरा ग्राउंड दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। बट देन एक आप सिटी में रखोगे, सिटी में चारों तरफ माहौल है, कभी आपको लंच ब्रेक का मौका मिला, आप चले गए, आप बॉस को एक्सक्यूज देके आ सकते हो सिटी में, अगर ग्राउंड है। चेपॉक मुंबई जैसे दो दो ग्राउंड है मुंबई में सिटी में, तो आप एक्सक्यूज देके बॉस को कि यार मेरी फ्रेंड बीमार है, मैं चले जाता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ, तो आप झूठ बोल के आ सकते हो। बट यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ऑल द वे लंबा चौड़ा ये सब रहता है, तो आई थिंक नहीं, एंड दैट पैशन इज नॉट देयर यार व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन। तो आपको यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स ये वो देखने मिलेगा, जो एक सिटी वाला आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि क्योंकि सिटी वाला खुद एक स्ट्रगल करते हुए नज़र आता है। देखिए, सुबह में आप कनफ खुद आप मुंबई में रहते हो, जिस तरह का स्ट्रगल रहता है आने-जाने का, तो आप मतलब एक सक्सेस के लिए आप जाते हो, एक ड्राइव रहती है आपके लिए। तो वो क्रिकेट इंस्पिरेशन लेके आता है, ये सिखाता है आपको, बाउंस बैक करना सिखाता है, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस, लेसन्स, एक रोलर कोस्टर राइड रहती है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो सब सिखाता है। तो सिटी पीपल पीपल हू कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू सिटीज़ टू परस्यू देयर करियर्स, टू मेक अ, ब्राइट फ्यूचर, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, मायने होता है एक टेस्ट क्रिकेट का, अप्स एंड डाउन्स, टू बाउंस बैक इन लाइफ, ये सब लेसन्स है। तो आई मीन सिटी में वही सब, और खास करके शहर में जब स्टेडियम होता है ना, तो आसान हो जाता है लोगों के लिए आना। एब्सोल्युटली। अगर अगर आपको 5 स्टेडियम पूछे जाए इंडिया में जो टेस्ट सेंटर्स होने चाहिए इंडिया के मेन, आप कौन से 5 स्टेडियम्स का नाम लेंगे? मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ईडन गार्डन्स, कोटला है, फिर चौथा पांचवा तो देखना पड़ेगा। नहीं, 5 हो गए। हाँ, नहीं मुंबई, तो एक दिल्ली, और कोटला तो मैं, हाँ हाँ दिल्ली हो गए। बट मुंबई, या दिल्ली, मोहाली भी कोलकाता, काउंट, मोहाली भी काउंट करता है, मगर मोहाली का मोहाली। दूर है थोड़ा। मोहाली तो का है नहीं, मतलब, मोहाली का स्टेडियम इस शहर के बीचों बीच, एकदम हाँ शहर से सेक्टर 62 मोहाली में है, मेरा होम टाउन है वो, मतलब मेरा बचपन से मैं उसी स्टेडियम में जा रहा हूँ, इट इज। सही है। लेकिन दैट इज द ओल्डर पीसीए स्टेडियम, अब मुल्लनपुर स्टेडियम बन गया है, और इस बार का आईपीएल भी शायद वो नए स्टेडियम में होगा जो न्यू चंडीगढ़ में है। दैट इज आई गेस थोड़ा दूर, शहर से थोड़ा दूर बाहर को है। वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, आई हैव नेवर बीन टू दैट स्टेडियम, बट ये बहुत एक अलग डिबेट है ताउस भाई, जो करनी भी बहुत जरूरी है, कि क्या इंडिया को भी अब 5 टेस्ट सेंटर। आई रिमेंबर विराट कोहली इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड once as a captain, as a test captain, that we need to have 5 test centers। तब खैर नहीं हुआ, बट आई गेस, लेकिन जो साहिल भाई ने भी कहा कि बीसीसीआई में जो पॉलिटिक्स है अभी, कि आपको रोटेशंस करनी है, आपको हर शहर को देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे देर आर फैंस हु, जैसे वियान सिंह कह रहे हैं, स्मॉल सेंटर्स कैन बी गिवन सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड ऑल। तो जो मार्की सीरीज है दैट इज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बिग कंट्रीज, जो जो टॉप 3 आईसीसी रैंकिंग्स में है, उनको आप मुंबई, चेन्नई, बड़े बड़े शहर में जहाँ पे आपको पता है क्राउड आएगा। वानखेड़े में हमें पता है क्राउड आता है, टेस्ट मैच में भी भर के आता है। चेन्नई में विनोद, चेन्नई क्राउड वी से एन इंटेलिजेंट क्राउड, जो चेन्नई का जो क्राउड आता है, तो अलग ही मजा आता है वहाँ मैच देखने का। बट इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो उसमें कुछ सवाल है, हम वो लेंगे रैप अप करने से पहले।
ये एक सवाल आया वीएन सिंह का, व्हाई नॉट इन फॉर्म लेफ्ट हैंडर Padikkal for Patidar looked clueless against left arm spinner flat deck is still playing on ranked in Ranchi। तो उसमें क्या आप Padikkal को लेते हैं Patidar की जगह? अनफेयर हो जाता ना, नहीं अनफेयर हो जाता, बट पाटीदार अगर रहता, अब नहीं रहता तो फिर अनफेयर हो जाता, बिकॉज आई मीन द डेब्यू वाज गुड। हमने पिछली बार भी बात यही की थी, डेब्यू वाज गुड, डिसेंट, ही वाज लुकिंग मिडल कर रहा था, बॉल कंफर्टेबल लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि यार फिजिटी है, नया नया नर्वस है, नर्वसनेस दिखेगी, नहीं। फर्स्ट टेस्ट डेब्यू वाज ब्यूटीफुल। Yeah, Unfortunate that he couldn't get a half century or a century, but then it was a beautiful debut. Second match में back to back unfortunate dismissals. That was funny. Yeah, I mean the way he got out and back to back delivery, golden ducks out हुए, quite soft. But then yeah, अब जब soft 0-0 आप करते, आप अगर आपको स्पेस मिलता और आप सडनली ऐसा विकेट फेंक के आते कि यार अच्छा देखने के बाद विकेट फेंक के आ रहे हैं, या आप कंज्यूम करने के बाद स्ट्रगल करते हुए नजर आते, बाउंस या स्पिन के लिए क्लूलेस होते, कंप्लीटली ऐसा बीट होते हुए जा रहे, दोज बॉल्स वर अनफॉर्चुनेट। तो अनफॉर्चुनेट डिलीवरीज पे आप मतलब एक पथेटिक बॉल्स थे, पथेटिक बॉल्स पे आउट होना अनफेयर हो जाता है, एक चांस नहीं देना एक यंगस्टर को, जो 30 साल के यंगस्टर तो एग्जैक्टली नहीं है, बट या 30 साल में ही मेच्योरिटी आती है टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो मतलब 28-30, तो अनफेयर हो जाता, नहीं खिलाते। देवदत्त पडिक्कल को मिलेगा चांस उनका, बट या नंबर 4 भी आप देखिए ना, नंबर 4 और देवदत्त पडिक्कल एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो वो फैक्टर भी top order काउंट इन होता है। लकी दैट Padikkal is not a number 4 batsman and a middle order batsman, that Patidar got an opportunity. तब आपने अनफेयर वर्ड का यूज किया है, सेम सवाल है, एग्जैक्टली यही सवाल है स्पोर्ट्स फैन का। डू यू थिंक इट्स अनफेयर ऑन मुकेश बिकॉज वी डोंट टेक सच कॉल्स विद बैटर्स टू अर्ली, वी गिव मेनी चांसेस? हमने अगर पटीदार को इतने चांस दिए हैं, डू यू थिंक कि अनफेयर हुआ है मुकेश के साथ कि उनको भी उतने चांसेस देने चाहिए थे? एब्सोल्युटली अनफेयर तो है ही, मगर क्या करेंगे कि इट्स मोर रिस्कियर, बिकॉज अब बॉलर्स के हाथ में होता है रन। बॉलर्स इज मतलब हार्ड वर्क है यार, बहुत हार्ड वर्क है, और थैंकलेस जॉब है। आप विकेट या नहीं निकालोगे तो आपको गालियां देना शुरू हो जाएंगी। बैट्समैन के पास तो फिर भी एक मौका है यार, ये ऐसी बॉल गिर गई, वैसी निकल गई, अरे नीचे रह गई। कितने पास एक्सक्यूज रहते थे कि यार बॉल नीचे नहीं रहती थी, फिर भी वो गिर जाते थे देख कर कि यार या बोल्ड हो जाते थे, तो एक एक्सक्यूज आ जाता, अरे बॉल नीचे रहेगी। सो या बैटर्स के बॉलर्स के पास वैसे एक्सक्यूज नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली, और आप ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बॉलिंग डालते हो आप, तो आपको ऐसा लगता है, मतलब पीपल विल कम टू कंक्लूजन फास्ट। सो आई मीन मुकेश लुक्ड ऑर्डिनरी, सच तो यही कहेंगे, ही लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी। वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश नहीं की थी, वो एक्स्ट्रा या बाउंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, जो एक बॉलर में नेचुरली होता है, या एक वेरिएशन। तो वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल आके सेम बॉलिंग मशीन की तरह डालना, तो इट्स अ बिट ये अनफेयर तो है, बट देन you bowlers tend to get exposed a lot and it's easier to make them soft targets, but then यही तो responsibility आ जाती है bowler की। एब्सोल्युटली। एंड तब जो रूट डिबेट चल रही थी, जोल कह रहे हैं वांट जो रूट टू प्ले द वे ही हैज बीन प्लेइंग इन दिस सीरीज, गुड फॉर अस, ही विल थ्रो हिज विकेट अवे। हमारे लिए जो कि उज्जवल ने कहा, डू यू एग्री नॉट विद उज्जवल बट विद द फैक्ट दैट Joe Root should play his conventional orthodox cricket shots, or do you think he should stick with the kind of reverse sweeps, reverse scoops, or whatever unorthodox shots that he's playing quite lately? कलब ये जो स्कूप्स आप सडनली एक दिन में नहीं सीखते हो कि एक दिन में यार Yeah, ये बॉल ऐसे आ रही तो आप ऐसा करके मार दो। yeah, वो प्रैक्टिस होती है, उसके पीछे प्रैक्टिस, और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो वो शॉट्स अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर yeah, जो रूट आई बीन सेइंग फ्रॉम डे वन की जो रूट अगर विकेट्स अच्छी होती, पेसी होती, तो उनके जो शॉट्स जिसपे आउट हो रहे वो इफेक्ट में ज्यादा आते, ज्यादा रन मिलता। मगर यहाँ पर पेसी विकेट है, यहाँ पर स्लो विकेट्स है, तो जो रूट yeah, हो या मतलब कोई भी बैट्समैन हो, चांसेस ये हैं कि बॉल हाथ में ही जाने वाला, अनलेस यू हिट विद गुड पावर। जैसे एक बार ट्राई किया था यशस्वी जायसवाल ने, एक बार, और yeah, बेन डकेट ट्राई करते हुए आ रहे हैं और सक्सेसफुल होते हुए आ रहे हैं। यू नीड गुड yeah, पावर टू हिट दोस रिवर्स शॉट्स या अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स इन दीस काइंड ऑफ विकेट्स। yeah, तो मुझे लगता नहीं है जो रूट शुड प्ले हिज ओन गेम। यहाँ पर उनको रियलाइज अभी तक हो जाना चाहिए कि भाई these are slow wickets here, you cannot time the ball, but timing yeah, is a very very crucial factor when it comes to playing extraordinary shots। पावर के साथ साथ टाइमिंग है, तो आप क्या टाइम कर पा रहे हो। जब आप सीधे शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे हो, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, तो आप
उल्टा शॉट जब खेलोगे तो क्या कॉन्फिडेंट लगोगे? आई डोंट थिंक सो यार। यू शुड प्ले स्टिक टू व्हाट वर्क्स ओवर हियर राइट नाउ। अभी तक तो समझ जाना चाहिए। दिस इज द फोर्थ टेस्ट और थर्ड टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट Fourth, 3-1 fourth test. That was my फोर्थ fourth टेस्ट। test. तो अभी तक It's तो a अभी तक long आपको समझ series. Yeah. तो अभी तक आपको समझ जाना चाहिए यार। 3 टेस्ट हो गए आपको कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो कीप टू द बेसिक्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग। आप इधर ऐसा Absolutely. रन मिड ऑन मिड ऑफ पे ही निकाल लोगे इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में यार। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली मैच शुरू हो चुका है। सिराज ने 3 बॉल्स भी डाल दिए हैं। सीधा बाउंसर थर्ड बॉल क्रॉली के सीधा चेहरे पे बाउंसर वो लैंड हुई है। एंड सिराज इज लुकिंग लीथल इन द फर्स्ट 3 बॉल्स। विल हैव टू वेट एंड सी। ताउस भाई जाने से पहले एक आखिरी सवाल, योर प्रेडिक्शन फॉर टुडे। साहिल भाई तो कह गए इंग्लैंड बहुत मारेगी, मारना भी चाहिए जिस तरीके की कंडीशन जो मैंने आपको कहा था कि आउटफील्ड नो बुमराह सब कुछ। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यार इंग्लैंड ओवर कॉन्फिडेंट हो गई ना तो घुस जाएगी यार। क्योंकि सिराज विल बी बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। आई होप पारस बामरे हैज डन सम वर्क यार, बिकॉज उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है। खाली ऐसे ही थोड़ी स्टाफ में रह सकते हो और कुछ वर्क नहीं करने का। एंड देन सडनली मुकेश कुमार को भी उनको कुछ करना चाहिए था यार। आई फील सैड फॉर दिस गाय, बट देन क्या करेंगे? पारस hasn't he worked with him? I don't know. So yeah, India will have some advantage, क्योंकि some advantage in the sense कि they'll be more powered up. यहाँ पर बैटिंग विकेट है तो सिराज will have a lot of responsibility। बुमराह नहीं है तो that is the beauty of cricket यार। आप solely depend नहीं होना चाहिए एक पर्सन पे। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, निभाओ यार। यू हैव डन इट इन द पास्ट। तो आई थिंक इट्स इंडिया विल कम अप विद समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Well, two different predictions. Sahil Bhai said England should and will dominate. Taus Bhai is thinking that India might dominate this session. Taus Bhai lunch पे जुड़ेंगे आपके साथ to see where does this session go in whose favor. Thank you so much for connecting with us, and thank you so much to all our viewers for joining with us. And you also can please send your questions, your opinions, your suggestions regarding the match, the playing 11, the conditions, the test, anything and everything related to this test series. We'll see you in the live, in the lunch live, where we'll discuss first session में जो कुछ हुआ. Thank you so much, South Boys. Thank you so much to all our viewers. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।